5th of your chapter diversity in living organisms. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about kingdom Plantae set 2. That is, हमने ऑलरेडी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड पैटेरिडोफाइटा के बारे में लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया. In this session we will going to discuss about gymnosperms and angiosperms. Clear? So let's start our chapter with phanerogams. First we have to understand what are phanerogams. जो phanerogams होते हैं वो क्या होते हैं? Some plants which make seeds and have well differentiated reproductive tissues are called phanerogams. वो plants जिनमें जो seeds का formation करते हैं और जिनमें well differentiated reproductive organs और we can say well differentiated reproductive tissues present रहते हैं, उन्हें हम phanerogams बोलते हैं. Clear? That some plants which make seeds and have well differentiated reproductive tissues are called phanerogams. Actually, in these seeds consist of embryo along with stored food. ये ऐसे plants होते हैं जिनमें seeds present रहते हैं. Seeds consist of embryo. जो seeds हैं उनमें embryo present रहते हैं along with the stored food. जो stored food है उसके साथ साथ उनमें embryo present रहते हैं. The stored food serves the purpose of initial growth of the embryo during germination. जो stored food रहता है वही जो initial growth के लिए जो initial growth होती है embryo की germination के time पे उससे food serve करता है. Clear? The stored food serves the purpose of initial growth of the embryo during germination. Seeds result from reproductive process in plants. और जो seeds हैं वो किसका result होती है? जो भी हमारे plants में reproductive process होते हैं उनसे हमें seeds मिल जाते हैं. The thing is that जो हमारे phanerogams होते हैं उनमें seeds को bear करने की ability होती है, उनमें well differentiated reproductive tissues present होते हैं, and in these seeds consist of embryo along with stored food. The stored food serves the purpose of initial growth of the embryo during germination, and seeds result from reproductive process in the plants. Clear? On the basis of presence or absence of naked seeds, these are divided into two groups. ये जो presence है, absence है naked seeds की, उन्हीं के basis पे हमने जो phanerogams हैं उनको दो types में divide कर लिया. First gymnosperms and second angiosperms. तो अभी हम इस सेशन में यही स्टडी करने वाले हैं कि gymnosperms क्या होते हैं, उनकी characteristics क्या होते हैं, उनके examples क्या होते हैं. सेम जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं. सो द थिंग इज, फर्स्ट बात आती है जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो क्या होते हैं. जिम्नो स्टैंड्स फॉर नेक एंड स्पर्मा स्टैंड्स फॉर सीड. जिम्नोस्पर्म दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है जिसमें जिम्नो का मीनिंग होता है नेक एंड स्पर्मा का मीनिंग होता है सीड. देयरबाय जिम्नोस्पर्म्स आर दोस व्हिच हैव नेक सीड्स. तो जिम्नोस्पर्म्स कौन से कौन से डिवीजन में जिम्नोस्पर्म्स डिवीजन में कौन से प्लांट्स आएंगे? वो प्लांट्स दोस व्हिच हैव नेक्ड सीड्स, जिनमें नेक्ड सीड प्रेजेंट रहते हैं. क्लियर? दैट जिम्नो स्टैंड्स फॉर नेक एंड स्पर्मा स्टैंड्स फॉर सीड. देयरबाय जिम्नोस्पर्म्स आर दोस व्हिच हैव नेक्ड सीड्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे जिम्नोस्पर्म्स के? फर्स्ट, दीस आर मोस्ट प्रिमिटिव एंड बियर सीड्स. ये क्या होते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं और ये सीड्स बेयर करते हैं. क्लियर? इनमें सीड्स प्रेजेंट रहते हैं. द सीड्स प्रोड्यूस आर नेक्ड एंड आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स. इनमें जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो नेक्ड रहते हैं, दैट इज वो फ्रूट्स में एनक्लोज्ड नहीं रहते. क्लियर? दैट दीज प्लांट्स आर मोस्ट प्रिमिटिव एंड बेयर सीड्स. सेकंड, द सीड्स प्रोड्यूस आर नेक्ड एंड आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स. एंड प्लांट्स are usually perennial, evergreen and woody. जितने भी plants होते हैं perennial होंगे, evergreen होंगे और woody होंगे. Saprophytes are aggregated to form cones which are separated into male and female cones. जो sporophytes होते हैं वो ऐसे aggregate होते हैं कि वो किसका formation करते हैं? cones का formation करते हैं जो separated रहती है into males and females cones. Clear? That saprophytes are aggregated to form cones which are separated into male and female cones. Also, xylem lacks vessels and phloem lacks companionses. जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स रहते हैं उनमें जाइलम जो होता है उसमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती. जाइलम में वेसल्स की लैक रहती है इसमें, जबकि जो फ्लेम है उसमें कंपेनियन सेल्स की लैक्स रहती है इसमें, दैट इज कंपेनियन सेल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते. अब जाइलम का वर्क क्या होता है? जाइलम का वर्क होता है कि जो वाटर है उसको जो डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, वहां सॉइल से वाटर को वहां तक ट्रांसपोर्ट करे। जो प्लांट बॉडी है उसमें जो हमारा वाटर प्रेजेंट है, जो सॉइल से वाटर वो लेगा उसे वो ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे फूड प्रिपेयर होता है उसे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। लेकिन जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें जाइलम्स में तो वेसल्स की कमी होती है और जो फ्लोएम होते हैं उसमें कंपेनियन सेल्स की कमी होती है। These have haploid endosperm cell. इनमें haploid endosperm cells प्रेजेंट रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए साइकस, पाइनस, देवदार, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, जियोस्पर्म्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइनस का एग्जाम्पल हुआ, साइकस का एग्जाम्पल हुआ, ये सब क्या हुए, ये जिम्नोस्पर्म्स हैं। क्लियर। नाउ द थिंग इज एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। एंजियो स्टैंड्स फॉर कवर्ड एंड स्पर्मा स्टैंड्स फॉर सीड। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और जो स्पर्मा है उसका मीनिंग होता है सीड। क्लियर। Thereby, angiosperms are those which have covered seeds. तो angiosperms कौन से substances हुए, कौन से organism हुए, वो organism जिसमें covered seeds present रहते हैं। Clear? That angio stands for covered and sperma stands for seed. Thereby, angiosperms are those which have covered seeds. Characteristics क्या होंगे angiosperms के? Actually, these are flowering plants. पहला characteristics क्या होता है, ये जो angiosperms होते हैं ये flowering plants होते हैं। Second, their seeds develop inside the embryo, which modifies to become a fruit. इनके जो seeds होते हैं वो embryo के अंदर ही develop होते हैं और जो develop होके क्या करते हैं, which modifies to become a fruit, और वहीं से fruit का production हो जाता है। Clear? That these are flowering plants and their seeds develop inside the embryo, which modifies to become a fruit. Clear? And plant embryo in seed have structures called cotyledons. जो plant embryos होते हैं, here plant embryos in seeds, seeds में जो plant embryos present रहते हैं उनकी structures रहती है। In seed have structures जिसको हम cotyledons बोलते हैं। Cotyledons are also called seed leaves because in many cases they emerge and become green when seed is germinated. जो cotyledons होते हैं उन्हें हम seed leaves भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफी केसेस में होता है जैसे ही हमारा कोई सीड है जब जर्मिनेट होता है तो ये जो cotyledons हैं ये बड़ी होती है, इमर्ज करती हैं और ग्रीन बन जाती हैं। आपने एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, आपने कभी देखा है किसी पोटैटो को आई मीन टू से किसी फील्ड में उगते हुए जब आपने देखा होगा जब वो जर्मिनेट हो जाता है तो पोटैटो में से कुछ ग्रीन टाइप की लीव्स निकली रहती हैं। वो जो लीव्स होती हैं वो cotyledons ही होती हैं। क्लियर। So the thing is, angiosperms are divided into two groups on the basis of number of cotyledons present in the seeds. इसी बेसिस पे कि कितने नंबर ऑफ cotyledons present हैं, इसी बेसिस पे जो angiosperms हैं उन्हें हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया, dicots and monocots. Clear? Dicots and monocots. So the first thing is that dicots क्या होते हैं? Dicots मतलब dicotyledons. Clear? Plants with seeds having two cotyledons are called dicots. डाइकोट्स का मतलब क्या हुआ, वो प्लांट्स जिनमें जो सीड्स हैं, प्लांट्स विद सीड्स, वो सीड्स वाले प्लांट्स जिनमें दो टू cotyledons प्रेजेंट है उन्हें हम डाइकोट्स बोलते हैं। In these, the root system has a prominent taproot and open vascular bundles are arranged in a ring. इसमें क्या रहता है, जो रूट सिस्टम होता है वो प्रोमिनेंट टैपरूट रखता है, जबकि जो हमारा ओपन वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रिंग में अरेंज रहते हैं। क्लियर। रूट सिस्टम जो होगा उनकी टैप रूट्स होंगी उसमें प्रेजेंट, जबकि जो ओपन वस्कुलर बंडल्स होंगे वो रिंग्स में अरेंज रहेंगे। क्लियर। द मेन थिंग इज दैट जो डाइकोट प्लांट्स होंगी उनमें जो cotyledons हैं वो 2 होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारा पी हुआ, रोज हुआ, नीम हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, डाइकोट्स के एग्जाम्पल हो गए। डाइकोट्स के बाद आता है मोनोकोट्स क्या होते हैं। प्लांट्स विद सीड्स हैविंग सिंगल cotyledons आर कॉल्ड मोनोकोट्स। मोनोकोट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स सीड्स वाले प्लांट्स जिनमें सिर्फ सिंगल cotyledons प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम मोनोकोट्स बोलते हैं। इन दीज द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिमिलर फाइब्रस रूट्स। इनमें क्या होते हैं, जो रूट सिस्टम होता है उसमें क्या होते हैं, फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा राइस हुआ, ऑनियन हुआ, सुगर केन हुआ, मेज हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल होगा, ये मोनोकोट्स के एग्जाम्पल हो गए। तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन है कि जो डाइकोट्स हैं उसमें cotyledons के 2 नंबर्स प्रेजेंट होंगे, 2 नंबर होंगे, उसमें cotyledons 2 होंगे, जबकि जो मोनोकोट्स हैं उनमें सिंगल cotyledon प्रेजेंट होगा। बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, एंड द क्वेश्चन इज
What do you mean by the term naked embryo? Naked embryo से मीनिंग आपका क्या है? And your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, naked embryo means that the embryo is not enclosed within the seed cover and is in the form of spore. Naked embryo का मतलब ये होता है कि जो embryo है वो seeds में close नहीं है. Clear? That is not enclosed within the seed cover and is in the form of spore. Simple सी बात है कि जो embryo है वो seed cover से enclosed नहीं है जबकि वो spore की form में present है. So clear that naked embryo means that the embryo is not enclosed within the seed cover and is in the form of spore. Clear? So the thing is, what did we learn today? आज हमने क्या क्या स्टडी किया? मैंने आपको बताया स्टार्ट में, मैंने आपको जब मैं आपको सेशन लास्ट सेशन करा रही थी तभी मैंने आपको बताया था जो प्लांटे किंगडम है उसके 5 टाइप्स होते हैं, 5 डिविजन्स होते हैं. फर्स्ट होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. इनके बारे में हमने ऑलरेडी उस सेशन में डिस्कस कर लिया था. इस सेशन में हमने जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में स्टडी किया. जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी किया और जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया. हमने ये भी डिस्कस किया कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो डाइकोट्स और मोनोकोट्स दो टाइप से प्रेजेंट रहते हैं और ये किसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं? ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ दैट कि कितने नंबर ऑफ कोटिलेडन्स उसमें प्रेजेंट है. तो जो किंगडम प्लांटे हैं उससे रिलेटेड हमने सारी स्टडी कर ली. In next session, we will gonna discuss about kingdom Animalia. Till then,